Hello to all. In this video we will discuss structure of cell. In previous video we discussed cell and their types, but in this video we discuss structure of cell. Generally cell can be divided into three parts. The first is outer boundary named cell membrane or plasma membrane, but in case of plant cell it is also covered another membrane like structure known as cell. Second structure is nucleus and the third structure is cytoplasm. In this video we discuss cell membrane or plasma membrane. See this diagram. This is the structure of animal cell. In animal cell, the outer boundary is cell membrane or plasma membrane. Some students confuse about protoplasm and cytoplasm. Here I explain what is the difference between protoplasm and cytoplasm. You know, the outer covering is plasma membrane or cell membrane. Inside this plasma membrane, the whole structure is protoplasm. You see in this diagram, this is nucleus and it is also covered by nuclear membrane. Outside the nuclear membrane and inside the plasma membrane, this part is cytoplasm. I mean to say प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड में और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है, ये कवर्ड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटसाइड ये जो कुछ भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म का पार्ट है. इसी साइटोप्लाज्म में जो भी सेल ऑर्गेनेल हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम, ये सारे स्ट्रक्चर इस साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं. You can define protoplasm. Protoplasm is equal to cytoplasm plus nucleus. अगर हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को ऐड कर दें तो बन जाता है प्रोटोप्लाज्म. बट outside the nuclear membrane and inside the plasma membrane the structure is cytoplasm. Now we discuss only plasma membrane. Here we see the structure of ultraviolet structure or microscopic structure of plasma membrane. This is the structure of plasma membrane. It is ultra structure which is taken from or seen from electron microscope. This is plasma membrane. You know, this is outer covering of the cell. A scientist named Singer and Nicholson in 1972 proposed a model which named fluid mosaic model to describe the structure of plasma membrane. 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए एक मॉडल प्रोड्यूस किया जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। सिंगर एंड निकोलसन से about 75% part of plasma membrane is made up by phospholipid. (75% of part of plasma membrane is made up by phospholipid. It is also called biphospholipid. Bi means two. Phospho means it is related to phosphate and lipid is lipid. You see in this diagram this is upper lipid layer and this is lower lipid layer. In this lipid layer protein molecules are embedded. These are protein molecules. We can understand in easily way this diagram. I draw the structure of plasma membrane. This is fluid mosaic model of plasma membrane. Why this is called fluid mosaic model? This is also called fluid mosaic model because you see in this diagram this is lower layer, this is upper layer. Both layer are made up by lipid. It is also called biphospholipid layer. Bi means two, first layer and the second layer. You see in the diagram the head portion is containing phosphate group. This is head portion and this is tail portion. Head portion contain phosphate group, so it is called biphospholipid layer. And in both layer protein molecules are embedded like as mosaic in a ground or फर्श. I mean to say आपने देखा होगा जब भी ग्राउंड पे ज़मीन पे मोज़ेक या टाइल्स लगाई जाती है तो वहाँ पे सीमेंट का एक थिक सॉल्यूशन बनाया जाता है, उसको पूरे ग्राउंड पे फैला दिया जाता है. उसके बाद उस थिक लेयर पे टाइल्स को लगाते चले जाते हैं, सेटअप करते चले जाते हैं, मोज़ेक को लगाते चले जाते हैं. सेम ऐसे ही यहाँ पे लिपिड्स की एक लेयरिंग होती है और इस लेयरिंग में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वैसे ही एम्बेडेड होते हैं जैसे कि फर्श पे मोज़ेक. इसीलिए इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है. मतलब यहाँ पे जो लिक्विड फूड है वो क्या है, लिपिड की लेयर है और यहाँ पे मोज़ेक लाइक जो प्रोटीन है वो इसमें एम्बेडेड है. अगर हम फास्फोलिपिड की बात करें तो ये हेड पोर्शन फॉस्फेट ग्रुप कंटेन करता है. ये लिपिड पहला लिपिड लेयर है, लोअर लिपिड लेयर. दिस इज द अपर लिपिड लेयर. इन दिस स्ट्रक्चर two types of protein is found. First is extrinsic protein and the second is intrinsic protein. What is the meaning of intrinsic and extrinsic? अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन ये लिपिड के दोनों लेयर से अटैच है, अपर लेयर से भी और
लोअर लेयर से भी। इसका कोई पोर्शन इन दोनों लेयर से बाहर नहीं निकला है, इसीलिए इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। एंड दिस इज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये उभरा हुआ होता है, बाहर की तरफ निकला होता है, मतलब इसका हाफ पोर्शन तो लिपिड लेयर में एम्बेडेड होगा, बाकी का हाफ पोर्शन बाहर की तरफ निकला होगा, इसीलिए इसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। इन प्रोटीन्स में पोर्स पाए जाते हैं और ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहे जाते हैं, बिकॉज दे आर हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल। These protein molecules show two types of transport. First is active transport and the second is passive transport. Now we discuss active and passive transport. In active transport, for the transportation, energy is required. It contains ATP फॉर ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये ATP कंज्यूम करके मूवमेंट करता है। फॉर द एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम आयन। यहाँ पे क्या होता है, सेल के अंदर से सोडियम और पोटेशियम आयन मूव करते हैं इनर साइड टू आउटसाइड, मतलब सेल के अंदर से बाहर जाते हैं, और यहाँ से बाहर जाने के लिए, सेल के अंदर से बाहर जाने के लिए इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ये मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होता है, मतलब सेल के अंदर सोडियम और पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा, और सराउंडिंग मीडियम में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, मोर होगा। तो यहाँ पे क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन लो है और बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का प्रोसेस तो होगा नहीं, तो इस मॉलिक्यूल को, एटम्स को बाहर जाने के लिए अंदर से एनर्जी देनी पड़ती है, इसीलिए ये एनर्जी कंज्यूम करके आउटसाइड माइग्रेट करते हैं। ऐसे ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। इन केस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट दे आर नॉट रिक्वायर्ड ATP। यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है मूवमेंट के लिए, ये डन होते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू। फॉर द एग्जांपल वाटर एंड गैसेस मॉलिक्यूल्स। वाटर और गैस मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है इनसाइड द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू होता है, और यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये जो मूवमेंट है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होता है, मतलब सराउंडिंग एनवायरनमेंट से सेल के इनसाइड मूवमेंट होती है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। You know, cell membrane is semi-permeable nature. In next video, we discuss function of plasma membrane or cell membrane.